بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب زندگی کے چند اہم بنیادی اصول، اس پر سوال و جواب کی نشست شروع ہوتی ہے. جی سوال کیجیے. صوفی صاحب ایک سوال تھا. آپ نے بات کی ہے کہ روحانیت میں تین چیزیں یا تین درجے بڑے اہم ہیں. ایک اندرونی علم ہے، ایک بیرونی، ایک روحانی فلسفی. ایک تو تھوڑی سی وضاحت اندرونی علم کی آپ ضرور کریں، یا باطنی علم ہے وہ کیسے حاصل ہوگا، کہاں سے حاصل ہوگا، کیسے ہے. دوسرا بیرونی تو آج کل ہر بندہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. تیسری جو چیز ہے روحانی فلسفی. اسلامی معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک مولانا روم نے تھوڑا کیا اچھا خاصا انہوں نے اپنی پوئٹری میں کام کیا ہے. اقبال نے کیا. کیا وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں ان کے خیالات، ان کی روحانی فلسفی کو عام نہیں کیا گیا؟ ایک کامن چیز نہیں ہے، ایک عام بندہ ان کی روحانی فلسفی کو نہیں سمجھتا، نہ اسلامی دنیا میں پریکٹس کی جاتی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کی روحانی فلسفی کیا ہے؟ آپ اس کی وضاحت کیا کریں گے؟ ہمارے اسلامی معاشرے میں روحانیت کو ترویج دینے کے لیے یا اس سے فوائد حاصل کرنے کے لیے روحانی فلسفی پر کتنا کام ہونا ضروری ہے؟ یا اقبال یا رومی کی فلسفی یا آپ جو کہنا چاہیں اس کو کتنا آگے بڑھانا ضروری ہے؟ تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیں. دیکھیے پہلا تو یہ ہے کہ اندرونی علم میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو روح کے اندر پوشیدہ انرجی ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے خلیفۃ اللہ کے طور پر، یہ بے پناہ طاقتور نور ہے، اور اس میں بے شمار صلاحیتیں. ایکچولی اللہ کی تمام صفات، ذات اس میں نہیں ہے، نہ ذات سے ایک ہوا جا سکتا ہے، لیکن ہر ایک صفت بے پناہ طاقتور ہے. اور اس کے بعد دنیا کی سب سے اونچی قسم کی ذہانت اس میں موجود ہے. ہم 7 ارب بندوں کا لاشعور آپس میں اٹیچ ہے. ہم اس سے نالج بھی ایکسچینج بھی کرتے رہتے ہیں، میسج بھیجتے بھی ہیں، ریسیو کرتے ہیں. اس کو جگانے کا طریقہ آپ کا یقین کامل اور ورد اذکار کرنا، کنسنٹریشن اور میڈیٹیشن، اور استاد یا اس سے سیکھنا. یہ 3 طریقے ہیں. یہ میں اپنی مختلف ٹیچنگ میں بتا چکا ہوں، تو یہاں پہ میں مختصر بات کروں گا. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، یہ جو روحانی فلسفی ہے، اس پہ کام تو ہوا ہے لیکن اسلامی دنیا بہت کام ہوا ہے، اور اس کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا گیا. وہ اجاگر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور یہ علم ایک ناڑی اور فاڑیوں کے ہتھے چڑھ چکا ہے. کیونکہ اسلامی دنیا، خاص طور پر پاکستان بڑا غریب ملک ہے. یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پہلے غربت کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ سلپ ہو گئے تو سلپ ہوئے رہتے ہیں. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے کہ مثلاً آپ کو ڈر خوف زندگی کی ہر لطف کو بھی تباہ کرتا ہے اور ہر ناکامی کا سبب ہوتا ہے. مثلاً موت کا خوف، بیماری کا خوف، بے عزتی شرمندگی کا خوف ہر قدم پر ہمیں روکتا ہے. ریلیکس رہ کر ہر کام کریں، آپ بہتر کریں، گھبراہٹ کریں نہ کریں. یہ سب روحانی فلسفی کے حصے ہیں. سائیکالوجی کچھ مدد کرتی ہے لیکن سائیکالوجی لمیٹیڈ ہے. مائنڈ سائنس والے اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں لیکن ان کا کام بھی لمیٹیڈ ہے. مجھے افسوس ہے، وہ صرف لسی بناتے جا رہے ہیں. تو اس کی بے پناہ ضرورت ہے. میں اس کے اوپر دن رات لگا ہوا ہوں. وہ اصول جو آپ کو زندگی میں ضروری ہے وہ آپ کو مختصر طریقے سے سمجھا دیے جائیں، اور آپ کے اس نور کو ابھارا جائے جو آپ کے اندر ہے. اللہ نے پیدا ہونے سے مرنے کا بندوبست رکھ کے انسان کو پیدا کیا، اور ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ہوتی ہے. وہ بک ہے قرآن پاک. قرآن پاک اگر آپ پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، تو آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا. لیکن ہمارے مولوی صاحبان کہتے ہیں پہلے ہماری فقہ کی کتابیں پڑھیں، اس کے بعد جو فرقہ ہے ان کا، اس کے بعد اینک لگا کر کہتے ہیں آپ پڑھیں. تو آپ کو قرآن پھر سمجھ آنے کے بجائے آپ اسی فرقے میں قرآن پاک کو فٹ کرتے رہتے ہیں، اسی کے جو ہوتے ہیں. تو ہر طرف سے کوشش ہو رہی ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور رہیں. یعنی ہمارے جو جاہل مولوی صاحبان ہیں ان میں چند % بہت اچھے بھی ہیں. بہت بڑے بڑے مولوی تھے، مودودی صاحب تھے، اپنا ڈاکٹر صاحب تھے، اور بہت سے لوگ ہیں وہ اپنا کام ابھی بھی کر رہے ہیں آج بھی. تو یہ مختصراً یہ ہے. جی شاید.
اچھا برکت آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک برکت پیدا ہوتی ہے، جی برکت سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے نظر آتی ہے؟ سائنسی طور پہ تو اسٹیٹسٹک کا ایک اصول وضع ہے کہ لیکن وہاں برکت کا تو ایسا سچ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اندر ایک روحانی طاقت آتی ہے، روحانیت بیدار ہوتی ہے تو کلیکٹیو یعنی مجموعی طور پہ ایک برکت پیدا ہوتی ہے، تو برکت ہے کیا نمبر 1، اور یہ پیدا کیسی ہوتی ہے نمبر 2، اور یہ نظر کیسے آتی ہے، یہ آپ پلیز وضاحت کریں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر برکت جو ہے یہ مثبت انرجی کے اندر اور مثبت سوچ کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر پورے ملک میں زیادہ تر لوگ، خاص طور پر ٹاپ کے لوگ، پازیٹیو اور ریلیکس مائنڈیڈ ہوں اور اللہ پر توکل بھروسہ کرنے، اللہ پر توکل کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے پر چلا بھی جائے، تو اس ملک میں خود بخود ہی برکت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس ملک میں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں یا بن جاتے ہیں جو اس کو سائنٹسٹ جو ضرورت ہو۔ اب پاکستان جیسا غریب ملک، قدیر خان کہاں سے چلا؟ بڑے کوئی ایسا امیر فیملی کے نہیں تھا، قدیر خان صاحب کوئی امیر فیملی کے، یا ان کو پیسہ ضرورت ہوتا تو وہیں بیٹھے رہتے۔ ہالینڈ میں وہ رہے تھے، جرمنی گئے تھے، تو وہ آدمی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ آپ جہاں پہ، میرے ایک روسی عورت نے مجھے بتایا کہ رشیا میں اگر آپ لان کو خالی چھوڑیں، وہاں پہ ایک رواج ہے کہ آپ لان کو خالی چھوڑ دیں، اس پہ گھاس پھوس جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کو جب بھی کوئی بیماری ہو، ایک بوٹی اس کا علاج ہوتی ہے جو جنگلی طور پر خود ہی اگاتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو وہاں بھیجا ہے۔ میں نے کہا وہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہاں پہ کچھ کتابیں ملتی ہیں جن میں ان کی شکل اور نام اور خواہش بتائے گئے۔ میں نے کہا چلے سمجھ آ گیا۔ پھر پتہ چلا کہ جہاں انسان رہتا ہے اللہ اس کے لیے تمام پھل اور ضرورت کی چیزیں اس موسم کے حساب سے۔ اسی طرح آپ اللہ کے قانون کو فالو کریں تو آپ کی زمین میں وہ مادیات ہیں ان کو نکالنے والے آ جاتے ہیں، وہ علم کے باہر آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں اللہ نے مکمل قانون دیا، اس سے پھر آپ کے وہاں پہ جب آپ ڈر خوف کا شکار ہوں گے، آپ کا بے انصافی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ لڑائی جھگڑا بھائی کے ہاتھ میں بھائی کا گرفان ہوگا۔ جی، تو اللہ کے قانون جو ہے وہ انصاف ہے، سچائی ہے اور صحیح قانون ہے۔ اب جی خالد صاحب آپ نے پہلے فرمایا کہ شکر اللہ کا ادا کرنا جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی آپ جتنا اس کا شکر ادا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو نوازتا جائے۔ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 100 وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجتیں دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ تو جب ایک انسان کسی ایسے حالات میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کسی وجہ سے بھی، کوئی بھی یعنی معاشی پریشانی، اولاد کی پریشانی، بے شمار پریشانی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب دعائیں کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، گڑ گڑاتا رہتا ہے، جب اس کو وہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں اور اس کی سوچ سے بڑھ کے عطا کرتے ہیں، تو اس کو پھر اس وقت جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کا شکر عمل میں ادا کرنا چاہیے اور لوگوں پہ وہ فیض و برکت۔ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کی ڈیمانڈ کی ہے، وہ چیز مل گئی ہے، ڈھول مار دے گی، جی اب بات ڈھول مار دے گی، دوڑیوں پریشان کر جی دے، وہ چراغاں کر دے، اور اس طرح کی چیزیں یہ وہ شکر سمجھتے ہیں، جبکہ شکر کا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے حصے کو نکالیں، جو آپ کے پاس مال ہے، جو آپ کے پاس علم ہے، اللہ کے راستے میں دیں، اور جتنی توفیق ہوتے ہیں علم بھی پھیلائیں اور مالوں بھی بانٹیں، لیکن اس میں بہرحال علم کو زیادہ اہمیت ہے۔ وہ چائنیز کہاوت ہے کہ اگر آپ نے غریب عورت کو ایک مچھلی دے دی تو آپ نے ایک دن کا مسئلہ حل کیا، آپ نے مچھلی پکڑانا سکھا دی، پکڑنا تو ساری عمر کا مسئلہ حل کیا۔ تو ہم دین کا اگر شعور دیتے ہیں، جو عملی زندگی کا بھی شعور جس میں شامل ہے، تو آپ انہیں مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں۔ یہ دین اور یہ عملی روحانیت ہے جو ہم نے سکھانی ہے، اسلام کو عملی زندگی میں استعمال کرنا ہے۔ یہ صرف جنت میں جاننے کے لیے نہیں، آپ بھی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔
शुक्र का असल तरीका है कि अल्लाह का हिस्सा निकालें, माली, ज़हनी, रूहानी, हर लिहाज से। जी। दूसरा ये होता है कि शुक्र, जो चीज़ आपकी 20 साल से नहीं हो रही है, आपको कोई रूहानी ख्वाहिश है, वो आपको नहीं मिल रही, आप शुक्र अदा करें। जब ख्याल है शुक्र अदा करें, उस तरफ से सोच हटा लें, अपने रास्ते पे चलते हैं, वो चीज़ आपके पीछे खुद ही पहुँच जाएगी। ये शुक्र का मैंने एक बड़ा अजीबोगरीब प्रैक्टिकल यूज़ देखा है। टटे मत मारें, भूल जाएं, अपने रास्ते पे चलते जाएं, वो चीज़ आपके पीछे आ जाएगी। जी हाँ जी। सर आप बारी बारी। कि झूठ के रिगार्डिंग में झूठ कभी बोलनी नहीं चाहिए, तो कभी बाद हज़रात से ये सुना है कि इसको पॉजिटिव सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खान बीवी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दो मुसलमान भाई के दरमियान झगड़ा हो गया, तो उससे आप एक छोटा सा हल्का से झूठ लगा के अच्छा पैगाम देकर उनका शॉपिंग कर सकते हैं। क्या ये इस्लाम इस चीज़ को अलाउ करता है? ये देखें, ये पॉजिटिव इस्तेमाल है, ये आप शायद झूठ ही से कहेंगे, लेकिन सेंस तो पॉजिटिव है। सीधी बात है, थोड़ा बहुत आप करें। मैं तो यह भी नहीं करूँगा, मैं टीचर हूँ, मेरे लिए झूठ बोलना मुश्किल है इस सूरत में भी। मैं कोशिश करूँगा इसको भी अवॉइड करना। आम इंसान उसे कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर ले अच्छे मकसद के लिए। मसलन कोई गोली मार रहा है तो उसे कह सकते हैं सॉरी भी, मैं कोई भी आप उसको एक्सक्यूज़ दे दें। आम आदमी मुझे कोई मारे, मैं कहूँ, शायद मैं कहूँगा मार दो, मैं तो अपने रास्ते पे खड़ा। ठीक, तो ये आपने देखना है उसका नुकसान, और कुछ ना कुछ आम बंदा कभी कभी गुंजाइश, लेकिन जनरली कोई झूठ मत बोले। जी। तवक्कल की डेफिनेशन। अच्छा, तवक्कल ये होता है कि आप कोई छोटी से छोटी चीज़ भी मांगें तो अल्लाह आपको दे देता है। ये इंसान के अंदर अल्लाह ने एक सिफत रखी है। अल्लाह की जो क्वालिटीज़ इंसान के अंदर है उसमें सबसे अहम ये है, इसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं वेस्ट वाले से समझाने के लिए। लेकिन तवक्कल जो भी चीज़ आप ख्वाहिश करते हैं उसका मतलब है कि अल्लाह आपको देगा, अगर आप अल्लाह के रास्ते पर आए। तो इसको पकाना पड़ता है, इसको पुख्ता करना पड़ता है। इसका तरीका मुख्तसरन मैं बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त फैज़ है जो लाहौर लालकुर्ती में रहता है, अब तो वहाँ से उठ के खानियाँ आ गए। उसके बड़े बुरे हालात थे, 10,000 तनख्वाह थी, 2,000 उसके बाइक का खर्चा था, 8,000 एक बीवी एक बच्चा था। तो 2007-8 की बात है, वो किस तरह गुजारा करता होगा। मैंने कहा आप छोटी सी ख्वाहिश करो। उसने क्या किया कि पहले उसने एक जूती देखी जो 4,000 की थी। उस वक्त 4,000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम। वो बड़ा शौकीन था इन चीज़ों का। कहता है मैंने कहा मुझे ये मिलनी चाहिए। 2-3 दिन के बाद उसे कोई गलतियाँ दुरुस्त करने का काम मिल गया उर्दू बाज़ार से, वहाँ ही वो काम करता था। उसको 7-7,500 रुपये मिले। वो फ़ौरन गया, उसने जाकर वो जूती खरीदी। फिर उसका मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, उसे उसके भाई ने ऑफ़र कर दिया जो पहले नहीं करता कि चलो मैं रिपेयर करवा देता, वरना उसके पास पैसा नहीं। फिर वो कहता है कि मुझे मोबाइल ज़रूरत था। वो मोबाइल मेरे बास ने, मैंने ख्वाहिश की, मेरे बास ने मुझे मोबाइल दे दिया। ये उस वक्त सारी चीज़ें 5-6 हज़ार 7 हज़ार रही में थी। उससे अगला उसका वो मोबाइल ख़राब हुआ तो इत्तेफाक से मेरे पास एक मोबाइल मौजूद था। मैंने नया लिया, मैं कि यार ये अद्धी कीमत पे बेची, किसी ने दे दो, मैं क्या नहीं ले। उसके बाद वो 10,000 के बजाय उसको 40,000 नौकरी मिल गई। वो आजकल खालियाँ हैं। परसों मेरी बात हुई, कह रहा था मैं कोशिश करूँगा आने की। उसके बाद उसके काम होने शुरू, उसको यकीन बैठ गया। छोटे लेवल से शुरू करके बार बार तजर्बे से आपके ज़हन से शक ख़त्म हो जाता है कि मुझे यह चीज़ मिलती है। फिर आप बड़ी दुआओं की तरफ जा सकते हैं। छोटी दुआओं से शुरू करें, ये तवक्कल पुख्ता होता जाता है। जी। तवक्कल शाह बालवी उन्होंने भी यही तरीका बताया था, लेकिन उनकी ज़बान और थी। जी शादी। अच्छा, आपका ये दावा है कि अच्छा इंसान कामयाब ज़िंदगी गुजारता है। जी। कि जब हम अपनी सोसाइटी देखते हैं, हमारे हमसाए दाएं बाएं, और तो कोई भी अच्छा इंसान ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आता, जी। बल्कि बुरे इंसान ज़्यादा अच्छी और शानदार ज़िंदगी गुजार रहे जी। हैं। इसकी फिर आपके दावे और इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है कि हम इस वक्त एक हालत जंग में हैं। हम 40 सालों से, बल्कि 72 सालों से हालत जंग में हैं। 40 सालों से जंग बहुत शदीद हो चुकी है। 28 दिसंबर 1979 में रूस जब अफ़गानिस्तान में आया, उस वक्त अमेरिका रूस दोनों हमारे मुल्क में आ गए। इस वक्त जो रस्साकशी चल रही है, ये चाइना और
अमेरिका की चल रही है। उस रसाकशी का हम हिस्सा है और हमें बड़ी बुरी तरह नाकाम बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का बाजुए शमशीर जम है, एगली ताकत भी है और सबसे मजबूत ऑर्गेनाइज फौज भी है। तो इस सिलसिले में हमें बुरी तरह खींचा गया। लोगों को ये चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल है कि बाहर की ताकतें हर कदम पर हमें कैसे ख़राब करती हैं। तो सिंपल बात यह है कि अगर आपकी माशी आज़ादी ना हो तो आपकी बाकी सारी आज़ादियाँ ज़ीरो होती हैं। जो भी आपको पैसे देते हैं अपने मफाद के लिए, तो ये सारे गंद जो घोला गया और इसे ख़त्म करने के लिए राय शरीफ का प्लान था, जिसमें थोड़ा सा हिस्सा आपके लीडर नवाज शरीफ का भी था कि चाइना को यहाँ लाया जाए ग्वादर पोर्ट में, और उस काम को चलाया गया। फिर आगे कुछ खराबी, ये टोला आ गया ट्राइका या जो भी नाम है, जिन्होंने चाइनीज़ कैंप से निकाल के अमेरिका की कोशिश की। उसमें हमारा काफ़ी 3 साल ज़ाया किए, ग्वादर पर काम बंद कर दिए। लेकिन सियासत मेरा मौजूद नहीं है, मैं इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ। मेरा यहाँ पे सवाल इंडिविजुअल जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, इसमें करप्ट पॉलिटिशियन, जी वो आप बात कीजिए। जब सिस्टम, जी मुझे समझ आ गई, मैं सवाल का दूसरा हिस्सा करता हूँ। देखिए वो लोग जो हीरोइन बेचता है पैसे तो उससे मिल जाते हैं, जो रिश्वत लेता है पैसे उससे मिल जाते हैं और आप मुझसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन आगे उसका असर क्या होता है, आज नहीं कल क्या होता है। कोई एक लीडर है, वो कोई चीज़ नहीं खा सकता, सिर्फ भिंडी खा रहे हैं। दूसरे साहब हैं, उठते हैं सारा दे के उठाया जाता है। बीवी बच्चे उनके क्या कर रहे हैं, घर में किस किस्म की बेबर्तियाँ हैं, 1 मिनट का सुकून नहीं है। जो हक पर खड़े हों और मजबूत खड़े हों, उनको आज भी अल्लाह बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं। हमारे तो ये नहीं है कि आपके पास जनाब 1 अरब रुपया हो या 1 खरब रुपया। उम्रे पे जाते हैं, जी जी, वो रमज़ान को जाते हैं। आप उनके जूतों में खड़े होकर देखें कि उनकी ज़िंदगी क्या है। लेकिन माशाल्लाह हमारी कौम के 95% गद्दे पैसे वालों की इंतहाई इज्जत करते हैं। उनका कसूर कोई नहीं है, थाने कचहरी में इन्हीं हरामियों का ज़्यादा होल्ड है, सॉरी। तो हम इसी वजह से हर बंदा दौड़ में है कि ये तरीका ठीक है। अल्लाह पर तो अक्ल वाले कम लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक हो जाए। मैं आज दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, और ये ठीक की तरफ चल पड़ा है। अगले 1 साल के बाद, आज 5 मार्च है, 2024 तक हालात इंशाल्लाह बहुत बेहतर है। यहाँ मुझे छोटा सा कुछ एक समय छोटा सा लगा। पॉइंट यहीं ले लें, फिर आगे कर्मा आपने टर्म यूज़ की, इंडियन हिंदुस्तानी, जी वो इस बरकत के मुतबादिल, यानी इससे क्या डेफिनेशन है? देखिए, कर्मा एक होता है कि जो मुकाफात अमल है उसे वो कर्मा कहते हैं, जो आप करते मुकाफात हो। अमल। लेकिन ये पिछले जन्म के कर्मा को मान के इसका बेड़ा करता है। कहते हैं आप पिछले जन्म में आपने ये गुनाह किया, इस वजह से आपको शूदर या अनटचेबल पैदा किया गया या लो कास्ट। आपने अच्छा अमल किया, आपने ब्राह्मण पैदा हो गया। ब्राह्मण कितना खुश है ये मुझे पता नहीं है, 1-2 मुझे मिले हैं तो ऐसे खुश नहीं नजर आए। लेकिन बात ये करने की है कि ये कर्मा वो अमल है जो आप भेजते हैं वापस आता है। हम इसे कर्म कहते थे अपनी जुबान में। अच्छा, मैंने इसे समझाने के लिए अच्छा, बाज कर्मा प्यारिया झील कोई ना पावे, सिर ते लाल लाल दी पंड होवे, बीजी कणक ते कोहट पैंदा भावें खास न्याय दी वंड हो, झूठे हो के आण बाजार विकदे भावें मगर दलालां दी जंड होवे। हैं बाज बिरामो मोहम्मदा कण नंगी भावें मगर कबीले दा फ्रेंड होवे। जी आप साजिद साहब, आपने फरमाया कि जिंदगी में कामयाबी के लिए मुस्बत सोच और वाज़ेह मकसद जी जी होना चाहिए। तो मुस्बत सोच जो है ना, इसके लिए रुकावट एक तो शक हो गया, एक आपकी कमज़ोर सोचें होंगी, एक मनफी सोचें। जी जी इनके तदारक के लिए कोई ऐसी चीज़ कि ताकि ये कम से कम, जी जब तक ये कम नहीं होंगी तब तक आप उस जी। तरफ बिल्कुल ठीक है। आप इसकी पहले तो देखें कि मुस्बत सोच ही तमाम कामयाबी की बुनियाद है। मुस्बत सोच ही सेहत और तमाम एनर्जी की बुनियाद है। जब आपको उसका फ़ायदा पता चलेगा तो फिर आप इसकी तरफ जाएंगे। लेकिन आप बंदों में मसला क्या होता है, ये बड़ा कीमती सवाल है जो आपने किया है कि मेरे पास बंदे आते हैं 2-3 महीने बैठ के कहते हैं हमने आपकी सारी बातें सुन ली। मैंने कहा आपने सुन ली, अमल नहीं किया, अभी मुस्बत सोच आपके अंदर नहीं घुसी। नेकी को अगर आप 100 नंबर दें तो 60% मुस्बत सोच है कि आपने, और तकरीबन तमाम चीज़ें नेकी की इसमें शामिल हैं।
लेकिन तशरीह मुश्किल होती है, इसलिए मुस्बत सोच नेकी के बजाय मैं यूज़ करता हूँ। तो ये आपके अंदर जब मुस्बत सोच बैठ जाएगी तो आपकी ऑटोमेटिक सोच जो है वो मुस्बत होगी। यहाँ फ़र्क ये है कि हमारे लोग बाहर से मुस्बत होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंदर से मुस्बत नहीं, उनका काम नहीं होता। छोटी छोटी मशक जो मैंने बताई है, जिस तरह फायज़ ने की, तो इस तरह आप बेशुमार, और मेरे दोस्त इत्फाक से वो मिसाल मुझे इस वक्त याद आई है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। बस आपने हर काम करते वक्त कामयाबी, आसानी और शुक्र को ज़हन में रखना है। फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता मनफियत आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि आपकी जो मुस्बत सोच है वो हर मामले में आपको कामयाबी, सुकून और खुशी दे रही है। जी जी मकसद प्रोफेसर, मकसद किस किस्म का है? मकसद आपका ज़िंदगी में मुश्किल नौयत का होना चाहिए। एक मकसद होता है कि मेरा कारोबार हो जाए जिसमें मुझे 5 लाख या 2 लाख आमदनी हो, ये एक मकसद है। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग मकसद है। लॉन्ग लास्टिंग आप और कोशिश करें कि मसलन मैं एक बहुत बड़ा इदारा कायम करूँ जिसमें इन चीज़ों की तालीम दी जाए, ठीक है ना। मकसद मैं एक अच्छा टीचर बनूँ, ये एक मकसद है, ना ख़त्म होने वाला है ना। आप टीचर में आगे चलते जाएंगे, आप किसी चीज़ के टीचर बन सकते हैं, आप माशियात के टीचर बन जाए, ठीक है। आप कोई भी ऐसा काम जो मुश्किल नौयत का लंबे अरसे के लिए जारी रख सकें। आप एग्रीकल्चर यहाँ पे आम है, आप उसकी किस्में डेवलप करनी शुरू करते हैं, जो आपकी पैशन है उस पर आप काम करें, तो आप जो मकसद है वो आपके लिए बेहतरीन मकसद वो होगा। लेकिन इसमें इंसानियत की फ़िला का पहलू होगा, तो आपको खुशी, सुकून और नेकियां मिलेंगी। आपका जितना टाइम खर्च हो रहा है वो नेकी में जमा होता जाएगा। ठीक, जी जनाब। सर, आपने 3 पॉइंट नंबर 13 में काम यूज़ किया था, तवक्कल, यकीन और नूरी जिस्म का जगाना। जी जी ये जो थर्ड पॉइंट है, नूरी जिस्म का जगाना, इसको किस तरह हम कर सकते हैं, या फिर ताकि हम अपने अंदर जो शख्सियत छुपी हुई है जी जी। उसको हम अच्छा, उसकी इसमें यह है कि आप सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें 500 बार रोज़ाना मुकम्मल, जो नमाज में है, ये आप पढ़ लें। या आप कोई भी विर्द ले लें जो आपके मिजाज से हो। आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें, आप कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लें। ये 3 है जो तकरीबन हर बंदा मुश्किल भी पढ़ सकता है। तहज्जुद रात को पढ़ा करें, तहज्जुद पढ़ना भी इसे जगाता है, ठीक है। इससे आपने इन टच भी होना है। फिर आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आपको इंट्यूशन आपकी बेदार हो जाती है, कश्फ बेदार हो जाता है, आपको चीज़ों सही गलत का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपने डिसीजन ले ली, उसमें ये मदद करता है। तो ये इबादत के ज़रिए जगाया जाता है। फिर कंसंट्रेशन की मशक से इसे इस्तेमाल किया जाता है, उसे डेवलप भी किया जाता है। फिर उस्ताद या टीचर से आप चीज़ें ये लेते हैं, ये ट्रांसफ़र होती है। मैं किसी को भी विर्द देता हूँ तो मुझे पुख्ता यकीन है कि ये इसको फ़ायदा देगा। लेकिन मसला क्या होता है कि मौलाना रूम ने कहा, एक शेर का बच्चा भेड़ों में बड़ा हुआ, वो भेड़ ही बन गया था। जो चूहा है अंदर से, मैं उसको शेर नहीं बना सकता। वो चूहा बड़ा चूहा बन जाएगा जो बुज़दिल होगा। ये दलेर आदमी और हौसला रखने वाला आदमी, जिसमें बड़ा लेवल का हौसला होगा, वो पूरी तरक्की करेगा। और वो बासानी, मैंने तो बहुत कम तरक्की की है, मेरे से कई गुना आगे चला जाए। यकीन मजबूत रखना और नूरी वजूद जगाना, ये 2 हैं। और तीसरा, किसी भी अमल को प्रैक्टिस से करें। कोई भी अमल हो, आप दम करें, 1 बार करें, 2 बार करें, 4-5 बार हो जाए तो अगले को इजाज़त दें, वो भी करना शुरू करें। इसे अमल पकाना है। नूरी वजूद को जगाना, तहज्जुद, कुरान पाक पढ़ना, विर्द वज़ाइफ करना, इससे भी पढ़ता है, कंसंट्रेशन से पढ़ता है। लेकिन इबादत और कंसंट्रेशन दोनों मिलाए रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आता है, ठीक है। ना हो टीचर एक आसान रास्ता है जो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, और टीचर को पता होता है कि इस रास्ते में कांटे कहाँ हैं, खड्डे कहाँ हैं। हौसला आपका कायम रखता है, हौसला देता है कि मंजिल नज़दीक है। टीचर का ये काम। जी यहाँ एक सवाल जी, आता है, एक कंसंट्रेट और तसर्रुफ में थोड़ा सा फर्क। कंसंट्रेशन जो है एक है, और एक आप मेडिटेशन कहते हैं। एक को आप इत्तिकाज़ तवज्जो, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन, ये 2 चीज़ें। डिफरेंट। मेडिटेशन आपके अंदर की जाती है, कंसंट्रेशन जनरली बाहर की जाती है। आप नुक्ता भी नहीं करते हैं, शमा भी नहीं शमा करते, भी ये कंसंट्रेशन हो। मेडिटेशन अंदर करते हैं आप। मुराकबा में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन इसको 2 लफ्ज़ों में डिवाइड किया गया। अपने अंदर तवज्जो करना, बाहर तवज्जो करना।
ٹھیک ہے، یہ دو حصے ہیں، لیکن اسلام کی روحانیت نے دونوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. جی سر جو اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات ہے ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے یا کسی ٹائم یا کسی سے آپ اللہ کے نام کی جو تسبیح ہے یہ آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے وضو کوئی ضروری نہیں. وضو صرف نماز کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لوگوں نے کام مشکل کیا ہوا، فلاں چیز کریں تو باوضو ہو کریں، کوشش کریں باوضو میں، ہر وقت رہنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے وقت وضو ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ورد کا بڑا ایک آسان آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں جو مجھے کل ہی میرے ایک دوست نے کہا. اس نے کہا میرا ایک بھائی ہے، یہ بھون کا بندہ ہے، کہتا ہے میرے بھائی ہے جو ذہنی کمزور تھا، تو اس کو شیشیاں مرگی پڑتی تھی، اس کو شیشیاں جمع کرنے کا شوق تھا. تو اس نے کیا کیا کہ جمع کرتا رہتا، لوگ پھینک جاتے تھے. ایک دن اسے شیشی نہ ملی، وہ بڑا پریشان، دیکھتا رہا نہ ملی. اتنی دیر میں اس کو کہا کہ بابا کلو، اس کو بابا کلو کو کلو کہتے تھے، بابا کلو آ رہا. اور دم آتا بابا کلو بابا کلو بابا. تیسری باری آخیا تو انہوں شیشی مل گئی. انہوں یقین پہ گیا، وہ جناب بابا کلو پڑھے جہاں وہ کام ہو جائے. ہوں گل یہ ہے کہ یہاں چیزاں جس سے یقین پہ گیا، اللہ جہے ورد دیتے ہیں وہ انتہائی پاورفل ہیں. یہ قرآن ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. یہ بہت پاورفل لفظ ہیں جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس پڑھے، مچھی کے پیٹ چوں باہر آ گئے، سمندر کی مچھی کتنے دور زندہ بھی رہے، باہر بھی آ گئے. یہ بے شک وہ اس کام واسطے جتنے پھنس ہوئے پڑھنا شروع کر دیں. اس طرح مختلف ورد قرآن پاک ہی دیتے گئے، مختلف دعاواں جنہاں جو تاثیر موجود ہے جڑی اس وقت ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو مضبوط چیز ہے کسی بھی معاملے میں، جڑی سن بار بار تاکید کی ہے. اللہ کے 3 نام اور 3 بڑے ہی آخری 2 جو رحمان اور رحیم رحمت آ گئے، بہت زیادہ پاورفل ہے. تسی انہوں اس میں اعظم بنا سکتے ہیں. انہوں جی بھی سر، وہ حضرت مولانا شیخ عبدالقادر درانی صاحب نے کسی نے سوال کیا کہ اسم اعظم کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے جو ریپلائی کیا تھا کہ جس بھی نام کو آپ خلوص سے یاد کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از اسم اعظم. جی بس یہی ہے. اور آپ کا یقین بیٹھ گیا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، اس میں اعظم ہے. یہ یقین آنا اور یہ کیفیت آ جاتی ہے میری اب دعا قبول ہوگی، تو آپ کی 98% ہو جاتی ہے. اس کیفیت کے ساتھ دعا کریں. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ جائیں تو 9 دن سے زیادہ نہ رہیں. کیوں؟ پھر کیفیت نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا، جو آدمی سال مانگے کیا کیفیت رہے گی؟ چند دن کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے. تو صحیح کیفیت میں دعا کریں. موڈ کا اس کو کہیں کیفیت نہیں ہے، جب موڈ ہو آپ کریں. جی اور کوئی سوال؟ مجھے تھوڑی وضاحت. سورہ کاف میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی تسبیح سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد. یہ سورہ کاف میں جو ہے. جی جی تو یہ بھی مناسب یہ وقت ہے. بہت اچھا وقت ہے. اور نماز کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں جو آپ کو قل واللہ شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں. آپ کوئی آپ کو جو پسند ہو وہ پڑھیں، مختلف تسبیحات آپ پڑھیں، کیونکہ نماز میں آلریڈی آپ کا ذہن ذرا ٹرانس میں چلا جاتا ہے، مرکوز ہو جاتا ہے، آپ کی انرجی ہائی ہو جاتی ہے. تو اور کوئی اگر سوال ہو؟ جی سر، آپ نے بات کی تھی انسانی زندگی کو مختلف پہلوؤں کو جو کاملیت کے ساتھ دیکھے وہ انسان دانشور ہے، اور ایسا دانشور ایک معاشرے کو، ایک بڑی سوسائٹی کو، ایک بڑے ملک کو اچھے طریقے سے لیڈ کر سکتا ہے، اچھی روایات، کلچر، رولز دے سکتا ہے. اگر ہم مغربی معاشرے میں دیکھیں تو ان کا ہر فلاسفر یا اسکالر وہ کسی ایک آدھے پہلو کو لیتا ہے، باقی پہلوؤں کو شاید چھوڑ دیتا ہے یا کچھ پہلوؤں پر بات کرے گا، اور شاید اس نے دوررس اثرات بھی ڈالے اور سوسائٹی کو متاثر بھی کیا اپنے ایریے میں. دوسری طرف اگر ہم اپنے معاشرے میں مشرق میں آ جائیں تو اقبال کی بات کریں، اقبال نے کسی حد تک، بہت زیادہ حد تک ایک ہر پہلو پہ نظر ڈالی، کاملیت کے ساتھ دیکھا، شریعت کو، روحانیت کو، ایموشنز کو، شاعری کو، اجتہاد کو، ہر چیز کو ایک اہمیت دی. لیکن کیا آپ کی نظر میں اقبال اس طرح سے معاشی، اس طرح سے مثالی معاشرے کو تشکیل دینے میں کیا کامیاب ہوا، اور اس نے کیا اثرات ڈالے؟ اس پہ یہ بڑا وسیع سوال ہے، مختصر جواب دیتا ہوں.
जी जी जरूर। जब अल्लामा इकबाल पैदा हुए तो बरसगीर बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमान इंतहाई जिल्लत की गहराइयों में गिरे हुए थे। थोड़ा अर्सा पहले जंग आज़ादी हुई थी, उसके बाद मुसलमानों पर, हिंदुओं पर किया गया, लेकिन मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ और मुसलमान इंतहाई मायूसी में फंस गए थे। उन्होंने जोश और उम्मीद का पैगाम दिया और उसी जोश और उम्मीद के नतीजे में लोग दोबारा खड़े हो गए और उन्होंने इस वक्त इस्लामी दुनिया का ताकतवर तरीन जो मुल्क है पाकिस्तान, उसकी तश्कील दे दी। तो अल्लामा इकबाल के पैगाम से हमें हटाया गया क्योंकि एक बार मौलाना रहमत अली थे और एक और थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, वो और एक और बंदे थे, अल्लामा इकबाल को मिले तो बंदे आगे कहते हैं, तीसरा बंदा नाम मुझे याद नहीं है, कि अब मौलाना बड़ी बात है कि आपका जो खुतबात है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, जी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हॉल में टांग दिया गया सामने। तो दूसरा कहने लगा, हाँ इकबाल, तुम्हारे पैगाम की उन्हें समझ नहीं अगर आती तो तुम्हें फांसी पे लटका देंगे। तो उन्होंने अल्लामा इकबाल को तो फांसी ना दे सके, लेकिन उन्होंने उनके पैगाम को बेड़ा गर्क करने की पूरी कोशिश की और आवाम तक ना पहुँचे। 1965 में फ्रांस वाले आए, उन्होंने हमारे सिलेबस से अल्लामा इकबाल की शायरी को हटाया और जो जहादी की, ये जहादी पैदा कर रही है। मर्द मुसलमान हमेशा जहाद में होता है, लेकिन दुनिया को अच्छी जगह बनाने का नाम जहाद है भाई। तलवार उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अल्लाह के पैगाम को फैलाना, इंसानियत से प्यार और अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करना और इस मकसद के लिए तैयार करना। दीन का सबसे बड़ा मकसद दुनिया को अच्छी जगह बनाना, प्यार भरी जगह बनाना है। जी, आप कहते हैं इंसानी नफ्सियात, तारीख, मुआशियात और अखलाकियात, इसका हमारे जो बैरूनी रूहानी इल्म के साथ इसका एक ताल्लुक है। जी, मेरी जो नाकस इल्म और मुतालिया है उसमें ये चीज़ इस तरह से पहले ही कहीं जो हमारे 4-5 स्कूल ऑफ थॉट स्पिरिचुअल हैं, जी, जी, उनमें ये मेरे नोटिस में नहीं आई। जी, जी, ये यानी आप यूँ कह सकते हैं कि आप एक तरह से मेरे नॉलेज में आप एक एडिशन कर रहे हैं इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर। जी। इस पे ज़रा रोशनी डालें कि रूहानियत को आप इन चीज़ों के साथ कैसे मिलाते हैं। देखिए जो दीन है, पहली बात ये है कि दीन का पक्का हिस्सा रूहानियत है। अगर आप रूहानियत को दीन से निकालते हैं, दीन एक डब्बा खुश सी चीज़ है, सही, उसका फिर आप सिर्फ नमाज़ें पढ़ते रहे, खुशी सुकून, ये आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। इस चीज़ को अल्लामा इकबाल ने बयान किया था। मैं नहीं कि मैं पहला बंदा हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आज जो आदमी कुरान पाक की तफसीर करे उसे चंद अल्लूम पर नफ्सियात, उन्होंने कहा माशियात, अच्छा, उन्होंने मैथ भी कहा, मैथ की मुझे नहीं, साइंस साइंस, और एक दो अल्लूम का उन्होंने कहा। लेकिन मुझे मैथ की समझ नहीं है। मैथ तो एटॉमिक साइंटिस्ट को आगे काम आती है, लेकिन कम से कम ABC आनी चाहिए मैथ की। अच्छा, तो ये इकबाल का फलसफा था। इकबाल ने पहली बार इस पर बात की थी, जो मुझे कुरान पाक रूहानी पहलू से या वैसे नहीं, उन्होंने ये कहा था नसीहत क्या कि ये कुरान पाक की तफसीर की बात है, रूहानियत की बात है। रूहानियत की बात नहीं है। रूहानियत की बात तफसीर मैं मतलब समझता हूँ कि रूहानियत में आपको अंदरूनी बैरूनी दोनों इल्म चाहिए हाँ। और रूहानी फिलासफी का इल्म चाहिए ताकि लोगों को हम समझाएं। लेकिन आप यहाँ स्पेसिफिक इसको बैरूनी र- रूहानियत के साथ जोड़ रहे हैं। रूहानियत के साथ जोड़ रहा हूं मैं जी। और ये बड़ा सख्त ज़रूरी है क्योंकि मैंने यूरोप में रह के देखा, वो लोग हमसे कुछ साल आगे हैं, 20 साल होंगे, 30 होंगे, अब कम हो गया गैप कुछ लोगों के लिए, लेकिन पहले हमसे बहुत आगे थे। तो वो इन चीज़ों को तलाश करते हैं और इनकी तलाश में बुरी तरह मारे फिरते हैं और हम समझा नहीं पाते हैं कि नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या है, फिर जन्नत में जाओगे, वो खुदा का नाम मानोगे, तुम्हें हर कदम पे दुनिया में भी और आगे भी मदद होगी। तो हम जब समझाएंगे कि आपके अंदर से आपका ताल्लुक होगा, अंदर से आपको सुकून भी मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। लोग कैश मांगते हैं, अगर दुनिया और आखिर दोनों में कामयाबी हो, रब्बना आतिना फिद दुनिया तो ये आप समझ लें कि दुनिया आखिरत दोनों के लिए ही है। लेकिन प्रायोरिटी आपने अल्लाह के पैगाम को देनी, आखिरत को। दुनिया इतनी चाहिए जो आपके लिए काफ़ी है। मेरे ख्याल में काफ़ी सवाल हो चुके हैं, एक आध सवाल रह गया। इनका जी। बात जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हो रही थी, ये उनका मैसेज है, वो एक शेर है उसका पहला मिसरा, हुई जहाँ तेरा जिसको तू करे पैदा। जी जी मतलब इकबाल ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दे दी, जी जी हुई जहाँ तेरा जिसको तू करे पैदा।
वो बड़ा उनकी खूबसूरत कुछ शायरी है, कहते हैं, मैं अगर गलत शायरी पढ़ने का हूँ, वो कहते हैं ये दानिश मलकूती, ये इल्म लाहूती, खुदी के दर का दरमान नहीं, हरम के दर्द का दरमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये ज़िक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं, खिरम ने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं, लेकिन अभी लोग समझने से पीछे हैं। रूहानियत, इस्लामी रूहानियत एक मुकम्मल है, अगर आप इससे हटेंगे तो आप दूसरी रूहानियत में फंस जाएंगे जो दुनिया में पीस नहीं ला सकती। जी बहुत शुक्रिया जी जनाब। सर। वो सच्चाई के मुतालिक आपने बात की थी, जी तो सर वो चंद अल्फाज है, मैं उसमें आप उसकी तशरीह चाहिए। और सच जो है, एक तो कड़वा सच होता है, इसके अलावा सच की और भी कुछ किस्में हैं। ये भैन भरा सब यार तेरे जेड़े बहुते ने रिश्तेदार थे। देखिए सच सर का- मैं इसको कंप्लीट कर दी सर। ये भैन भरा सब यार तेरे जेड़े बहुते ने रिश्तेदार तेरे, जे आजमाएगा ते कल्ला रह जाएगा, जे आजमाएगा ते पल्ला झाड़ के बह जाएगा, जे सच बोलेगा ते कल्ला रह जाएगा। जी ये उसका अपनी- क्या करना चाहिए जी सर? अपनी जगह पे वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि सच ही उनको इकट्ठा करता है। अगर आपका ईमान है कि आपके अल्लाह के रास्ते पर खड़े हैं और आप सच्चे हैं, और लेकिन अब क्या है कि एक सच्चा हो और हर एक को डंडा सर में मारता हो, तो ये सच नहीं होता। ठीक है बिल्कुल। अब मसलन आप महफिल में बैठे हैं, आप साहिब सदर हैं, मैं खड़ा हो जाऊं तो आपको सच कहूँ, ये नमाज का टाइम गुजर है, आपने ये नहीं किया, तो इसको आराम से कहें कि बेहतर है हम नमाज पढ़ लें। सच को पत्थर की तरह मत मारें अगले के साथ में, हम लोग ये गलती करते हैं। तरीके से बात करें, अगले जो फसाद पैदा करता हो वक्ती तौर पे खामोशी करें, बाद में चैलेंज बात कर दें। तो आप अगर सच पे खड़े हों तो आपकी बाकी बरकतें आपके साथ शुरू हो जाएंगी। सच के अलावा कहीं भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन सच से तीली मत लगाएं। हम सच की मदद से हर महफिल में तीली भी लगा देते हैं, हर महफिल में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है ये बात करें। सर एक जी। सवाल था, जी हमारे मुआशरे में हर बंदा रूहानियत की दुकान खोल कर बैठा है। जी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं मिला हूँ, देखा है, जिनकी इंसानियत या इंसानी मुआशरे की ना नफ्सियात पर नज़र है, ना मसाइल का उन्हें पता है, लेकिन वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं। तो आप इसके दरमियान फ़र्क करने के लिए असली या नकली या बेहतर या तामीरी या तकरीबी रूहानियत में क्या पहचान या क्या क्राइटेरिया आप सेट करते हैं कि हमारा मुआशरा उन झूठी दुकान से, ऊंची दुकान, फीके पकवान से बच जाए? पहली बात यह है कि जो मैंने बात कही है कि जो आदमी रूहानियत में अच्छा होगा उसमें कुछ हीलिंग पावर भी होगी, उसमें कशफ भी होगा, उसमें दुआ की सलाहियत भी होगी। मुशाबे दवात हो तो ये सबसे आगे है, यानी जिसके लिए दुआ करें। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, ये दो चीज़ें आपको कुछ में मिल जाएंगी, दम और कशफ। मुशाबे दवात काम लोग, उसके लिए बहुत मजबूत यकीन चाहिए, लेकिन हर आदमी पहुंच सकते हैं, हर आदमी के मुंह में सलाहियत है। जहाँ तक दूसरे आदमी के ताल्लुक है कि आप उसे कैसे पहचान करें, पहली बात यह है कि उसकी कौलो फेल में तजाद नहीं होगा, उसकी महफिल में आपको एनर्जी महसूस होगी, आप खुश होकर बैठेंगे, आपकी उदासी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, आपको वक्त गुजरने का एहसास भी इस तरह नहीं होगा जैसा होना चाहिए, और आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा आप एक नई एनर्जी लेकर गए। तो ये आप आम तौर पे कुछ लोग चेहरे से देखकर अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये आदमी रूहानी है, लेकिन वो एक टोटका है, कुछ आंखों में देखकर, उसकी शाइन देखकर, लेकिन ये पहचान गलत भी होती है। जिन्होंने थोड़े बहुत बिल्ड किए होते हैं, आप जिस्म के आसपास देख के पहचान कर सकते हैं उसकी रूहानियत की। जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ वो अभी तक तो गलत साबित नहीं हुई, लेकिन आप उस बंदे की, एक तो वो माली तौर पे लालची नहीं होगा, और जिनसे मुखालिफ की तरफ भी उसका रुझान बहुत कम होगा। माली लालच और ये दो चीज़ें, यानी नफ्स की वो ज़्यादा हो, वो ठीक बंदा नहीं है। लेकिन नफ्स को कंट्रोल करना इस्लाम कहता है, मारना नहीं कहता। तो आपने ये दो तीन एहतियातें कर दी हैं, आपको बंदे मिल जाएंगे। बंदा हर कदम पे भी मौजूद है कहीं ना कहीं, लेकिन 90% फ्राडिये हैं रूहानियत में, 8% अनाड़ी हैं,
اور یہ انہوں نے اتنی بڑی دھول مارا ہوا ہے ان کے چیلے چانٹوں میں کہ 2% جو شریف ہیں ان کو پرواہ کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، وہ اپنے گونے میں بیٹھے مست ہیں، ان کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس گدے جمع ہوں گے، گدے ہمیں نہیں چاہیے، گھوڑے جمع کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اب ہم آخر میں مراقبہ ہوگا، تھوڑی دیر ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اس کو بند کر